Hi everyone, welcome to MB Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LRDA practice series, and today again we are taking a DI based set right from CAT 23. Let's do this particular set. Right, chalo. Let's start. First, as always, try this set yourself, right? Before proceeding with the rest of the solution. ठीक है? चलो, so क्या दिया हुआ है यहाँ पे? In a coaching class, some students register online and some others register offline, right? So there are two categories of student, offline and online, right? And obviously there is no overlap, right? Next, no student registers both online and offline, right? So there is obviously no overlap. So we are not really going into Venn diagrams in this particular scenario. Hence, the total registration number is the sum of online and offline registration. So online and offline add कर देंगे, total number of registration मिल जाएगा. The following facts and the table pertain to these registration numbers for the 5 months January to May of 2023. So January, February, March, and April and May, right? So 5 months and online, offline, and totals, right? So the table shows the minimum, maximum, median registration number of these 5 months separately for online, offline, and total number of registrations. So इस particular table को पहले समझ लेते हैं before we actually move on to solving this. So online में आपके पास 5 वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5. वो 5 वैल्यूज में minimum possible value is actually 40. The maximum possible value is obviously 100 and the median value is 80. राइट अभी मीडियन एक बार सिंपली से समझ लेते हैं मीडियन पर्टिकुलरली होता क्या है. सो अगर तुम्हारे पास 5 वैल्यूज है, सो इफ यू गो ऑन टू अरेंज दीज 5 वैल्यूज आइदर इन द असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा अगर आप अरेंज कर दोगे, जो आपकी मिडिल वैल्यू आएगी दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द मीडियन ऑफ दोस वैल्यूज, राइट. सो कहीं ना कहीं हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि जैसे ऑनलाइन में अगर आपका मिनिमम 40 है, मैक्सिमम आपका 100 है, एटलीस्ट वन ऑफ द वैल्यू विल बी 80, राइट. तो मिडिल में आपका 80 आने वाला ही है, तो एक वैल्यू आपकी 80 होगी. हाँ, अब इसका ये भी मतलब है कि जैसे जो ये वाली वैल्यू होगी, लेट्स से सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, सो ये वाली वैल्यू मेरी डेफिनेटली क्या होने वाली है, 80 या 80 से लेस होगी. क्लियर. एंड इसी तरीके से ये जो अपर वाली वैल्यू है वो भी तुम्हारी क्या होगी, 80 या 80 से ऊपर, बट डेफिनेटली आपका 100 से इक्वल या फिर लेस होगी. ठीक है. नाउ ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल. Let's start figuring this out, and we have certain conditions and इन conditions को use करते हैं. So let's make a clean diagram out of it. So हमारे पास तीन categories थी. पहला आपका online था, the second is your offline, and the third should be your total. And again the information is given for 5 months: January, February, March, April, and finally. ठीक है. अब एक एक करके कंडीशंस पढ़ते हैं. बहुत सारी कंडीशन नहीं है साइड, सो इसमें आपको थोड़ा वैल्यूज फिगर आउट करना पड़ेगा एनालिटिकली. लेट्स फर्स्ट रीड द कंडीशन. इन एवरी मंथ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वर मल्टीपल्स ऑफ 10, राइट. सो हमेशा तुम्हारा जो भी वैल्यू इस टेबल में दिखने वाला है वो 10 का मल्टीपल दिखेगा. तो यहाँ पे 10 का मल्टीपल है, यहाँ पे 10 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली आपका टोटल भी हमेशा 10 का मल्टीपल ही आने वाला है. ठीक. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. Second, in January, the number of offline registrations were twice that of online registration. तो January के मंथ में offline वाला this value is double of this value. So let's say अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे x है, तो यहाँ क्या आने वाला है 2x. So ये भी बोल सकते हैं कि total number of registration क्या हो जाएगा फिर आपका 3x, 3 का definitely एक multiple. Next condition, in April the number of online registration was twice that of offline. तो April के मंथ में just opposite है, ऑफलाइन वाला ऑनलाइन वाला आपका ऑफलाइन का डबल है. तो लेट्स से अगर यहाँ पे y है तो यहाँ क्या आएगा 2y. अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे क्या आएगा आपका टोटल 3y. दैट इज द सेकंड थर्ड कंडीशन ऑब्वियसली. फोर्थ, द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस इन मार्च, ऑनलाइन इन मार्च, दिस वैल्यू was the same as the number of offline registration in February, this value. तो ये दोनों आपका नंबर क्या है, सेम. लेट्स से अगर ये k है तो ये भी तुम्हारा कितना है, k है. द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वॉज द लार्जेस्ट इन मे. ऑनलाइन हमारा मई में हाईएस्ट है. ना ऑनलाइन में ऑलरेडी आपको पता है कि आपके मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, 100 है. सो हम यहाँ पे तुरंत से लिख सकते हैं क्या आ जाएगा आपका 100, राइट. सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स वी हैव. अब इसके बाद आपका कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, सो बेसिकली वी हैव टू स्टार्ट फिगरिंग आउट आवरसेल्व्स. ठीक है.
ऑब्वियसली मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन के अराउंड आपको सेट मिल गया। नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अगर मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये 3x एंड 3y सबसे अच्छे पॉइंट्स है। क्यों? बिकॉज अगर आप नोटिस करो तो आपका जो टोटल में आपके पॉसिबल वैल्यूज हैं, 5 पॉसिबल वैल्यूज होंगे टोटल के, उन पॉसिबल टोटल वैल्यूज में सबसे लीस्ट क्या है 110 और सबसे हाईएस्ट क्या है 130 एंड मीडियन तुम्हारा कितना है 120। सो एक बात की तो गारंटी है ना, 110 से नीचे नहीं जाएगा, 130 से ऊपर नहीं जाएगा, एंड ये टोटल हमेशा 10 के मल्टीपल्स होंगे। सो एक्चुअली में अगर नोटिस करो तो ये जो टोटल होंगे, ये तीन ही तो पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं, बिकॉज ये रेंज बहुत छोटी है। 110, 120, 130, these are the only possible three values for the total. And if I notice from this January and April month, both these values are actually a multiple of 3. तभी 1:2 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा। सो इन तीन नंबर में सिंपली चेक कर लो कौन से हमारे नंबर 3 से डिविजिबल है। सो यू विल ओनली गेट वन पॉसिबल वैल्यू, दैट इज 120। सो यहाँ पे भी 120 है, यहाँ पे भी आपका 120 है। बिकॉज ये 120 है तो इसको 1:2 के रेशियो में तोड़ दो, कितना आ जाएगा 40 एंड 80। सो दिस इज 40, दिस इज 80, निकल गया। सिमिलरली ये 40 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। राइट, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। राइट, सो बहुत ज़्यादा आपने कोई जैसे बहुत बार क्लासेस में आप बोलते हो ना कि डीआई में अपने को बहुत स्ट्रगल है। राइट, 23 में डीआई का सेट आया था स्लॉट 3। तो नोटिस करो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है टेबल्स में, बेसिक लॉजिक में, बेसिक आपको टर्म्स अगर पता है। सो आपका डेफिनेटली बस थोड़ा आपको एनालिटिकल ब्रेन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसमें। नेक्स्ट, अब मे बी जैसे ये 100 के बारे में सोच सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नंबर एटलीस्ट अपने को पता है, एंड ऑल्सो मुझे ये चीज़ आइडिया है कि ऑफलाइन में मेरा लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना होने वाला है 30। तो एक चीज़ समझना बहुत सिंपल है, ये वैल्यू निकालना ये दोनों, बिकॉज टोटल में आपका ये जो वैल्यू है वो 130 को क्रॉस तो नहीं कर सकता। जब यहाँ पे मैं लीस्ट पॉसिबल रखता हूँ ऑफलाइन का, जो कि कितना है 30, तब जाके ये हमारा 130 बनता है। तो इसका मतलब अगर मैं 30 से जरा सा भी ऊपर बढ़ाऊंगा, बिकॉज लीस्ट 30 था, 30 पे आपको 130 मिला, राइट? अगर मैं 30 से इसको ऊपर लेके गया तो टोटल भी 130 को क्रॉस करने लगेगा, बट टोटल तो 130 से मैक्सिमम जा ही नहीं सकता आपका। हेंस वी कैन डेफिनेटली से कि यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, एंड विद दैट दिस शुड बिकम इक्वल टू 130। राइट, क्लियर कट मिल गया। नाउ अब हमारे पास ये बचा फेब्रुवरी एंड मार्च के वैल्यूज फिगर आउट करना। इसमें एक ही हमारा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब हमें पता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी क्या होने वाली है, सेम। नाउ पहले मैं ये देख लेता हूँ कि क्या मैंने मिनिमम मैक्सिमम एटलीस्ट नोटिस कर लिया है, सब कुछ एक बार आ चुका है क्या। तो जैसे ऑनलाइन वाले में देखोगे तो 40 और 80 दोनों ऑलरेडी विजिबल है। अब के बारे में हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि 40 80 में से कुछ होगा ही होगा, बट व्हेन आई कम टू ऑफलाइन वाला पार्ट, ऑफलाइन में मैं नोटिस करता हूँ कि 30 मिनिमम एक बार आ चुका है, बट ये 50 जो हमारा मीडियन है, कम से कम एक बार तो आपको 50 दिखेगा ही दिखेगा ना, वो 50 अभी तक आया नहीं है। सो आई कैन डेफिनेटली से आइदर दिस फेब्रवरी इज 50 और दिस मार्च इज 50, इन दोनों में से कोई एक 50 तो होना ही होना पड़ेगा। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, एक बार हम इधर 50 करके टेबल बना लेते हैं और एक बार इधर 50 करके टेबल बना लेते हैं और फिर हम चेक करते हैं। लेट्स क्विकली मेक अ सेकंड टेबल आउट ऑफ दिस। तो ये पूरा पहले डेटा क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। राइट, सो दिस was 40 80 120, these two are obviously same, and this is 80 100 40 30 120 130। तो मैंने क्या बोला, हम दो पॉसिबिलिटीज इसमें चेक करना स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले ये सिंपल लग रहा है बिकॉज ये दोनों अगर सेम रखना है, तो मान लो अगर मैंने इसमें 50 रखा तो इसमें भी क्या आ जाएगा तुम्हारा 50 आ जाएगा। राइट, बोथ दीज आर एक्चुअली इक्वल टू 50। और दूसरे वाले केस में हम इधर क्या कर लेंगे 50 रख लेंगे और इसको सोचना स्टार्ट करेंगे। लेट्स थिंक अबाउट द फर्स्ट केस इटसेल्फ, ठीक है। नाउ सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पे नोटिस करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे क्या आ सकता है, क्या हम ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं? अब इसमें इंफॉर्मेशन ये दिया था कि हमारा मीडियन क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। अब अगर मेरा मीडियन 50 है, राइट, 1 2 3 4 5, अगर मेरा मीडियन 50 है तो मतलब ये जो दोनों वैल्यूज होंगी ये 50 इक्वल एंड अबव होना चाहिए, और इधर वाली वैल्यूज 50 इक्वल एंड लेस होना चाहिए। अगर आप नोटिस करो 50 के बियॉन्ड आपके पास 80 40 30 है, 30 40 40 आर लेस देन 50, और 80 आपका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। तो ये वाली वैल्यू जो है वो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि 50 या 60 या 70 या 80 इनमें से हो सकता है। राइट, 50
60, 70 या 80 इनमें से कुछ हो सकता है, यही हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज है, राइट। 50, 60, 70 एंड 80। डेफिनेटली मेरा 50 नहीं बन सकता, राइट, क्योंकि 50 प्लस 50 हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बट हमारा यहाँ पे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, 100 है। सो हमारे पास यहाँ पे काफी सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही है। क्या सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है? एक बार यहाँ पे भी चेक करते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, इसमें आपका मीडियन 80 है, राइट, इस ऑनलाइन के लिए 1 2 3 4 5। इसमें नोटिस करो तुम्हारा मीडियन क्या आना चाहिए, 80, मिडिल में एक 80 आएगा। 80 से नीचे तुम्हें ऑलरेडी दो वैल्यूज दिख रही हैं, 40 एंड 50, और आपको हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या दिख रही है, 80। तो अब ये जो वैल्यू है, ये डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि यही वैल्यू है। अब ये वाली जो वैल्यू है, वो मेरे पास क्या हो सकता है, या तो 80 हो सकता है, या तो 90 हो सकता है, या तो 100 हो सकता है, बिकॉज 80 को मीडियन बनना है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, तो इसमें तुम्हें एक्चुअली में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी मिलेगा, बिकॉज अगर जब 80 रखोगे तब 80 प्लस 50 से 130 आएगा, जो कि टोटल का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। अगर तुमने इसमें 90 या 100 रखा, यहाँ पे 90 100 आएगा, सो ये जो टोटल आएगा वो 90 के साथ 140 आ जाएगा और 100 के साथ 150 आ जाएगा। वो तो पॉसिबल ही नहीं है टोटल में। हेंस इस वाले सिनेरियो में जब हमने यहाँ 50 रखा और ऑटोमेटिकली यहाँ 50 गया, इस जगह पे एक ही पॉसिबल वैल्यू आ सकती है, एंड दैट इज 80 इटसेल्फ। 80 से ऊपर जा नहीं सकता, एंड 80 से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल स्पेस ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास 80 से नीचे दो वैल्यूज आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं इसमें। सो 80 प्लस 50 दैट इज 130। और इसमें नोटिस करो, इस पर्टिकुलर रो में तुम्हारा जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू था 110, वो अभी तक आया ही नहीं है। एक बार तो आएगा, तो वो 110 एक्चुअली में यहीं पे आने वाला है। सो दिस हैज गॉट टू बी 110, और 50 प्लस समथिंग इज 110, मतलब ये कितना आएगा, 60। सो डेफिनेटली ये वाला केस तो मेरा सेटिस्फाई कर ही रहा है चीज़ों को, राइट। ये वाला केस हमारा डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है चीज़ों को। नाउ हमारा अगला थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या हम वैल्यूज लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो कुछ आएगा। तो अब यहाँ पे सेम लॉजिक से हम एक्चुअली में फिर से इवेलुएट करना स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। सो लेट्स डू दिस। सो पहले तो यहाँ पे वही सेम चीज़, यहाँ पे क्या आ सकता है, बिकॉज यही वैल्यू यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ नोटिस करो, इस वाले ऑफलाइन में अगेन आपका क्या था, मीडियन 50 होना था, 1 2 3 4 5, मीडियन तुम्हें 50 करना है। 50 से नीचे ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या है, 40 एंड 30, राइट। 30 एंड 40 ऑलरेडी तुम्हारे पास है, और हाईएस्ट वैल्यू तुम्हारी पे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज 80। अब ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, वो तुम्हारे पास क्या हो सकती है, वो 50 एंड अबव होनी चाहिए। तो इसके पास क्या पॉसिबिलिटी है, 50, 60, 70 एंड 80, चार पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास। अब उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तुम जो भी लिखोगे वही तुम्हारा यहाँ पे भी आ जाएगा। मान लो तुमने यहाँ पे फर्स्ट केस ट्राई करना चालू करा, जैसे कि 50, तो अगर तुम यहाँ पे 50 लिखोगे तो तुम्हें यहाँ पे भी 50 लिखना पड़ेगा। बट मैं 50 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे तुरंत से दिखेगा कि 50 प्लस 50 100 आ जाएगा यहाँ पे। बट टोटल में कभी भी हमारा 100 आ ही नहीं सकता, बिकॉज लीस्ट पॉसिबिलिटी ही हमारी किसकी है, 110 की। सो 50 इज डेफिनेटली रूल्ड आउट फ्रॉम हियर। तो बचा क्या, 60, 70, 80। अब हम चेक करना ज़रा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 60 ईयर। अब अगर मैंने यहाँ पे 60 लिया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 60। 60 प्लस 50 कितना बन जाएगा, 110। तो ये तो चलो ठीक है, 110 बन सकता है। अब उसी लॉजिक से फर्स्ट वाले में जैसे हमने यहाँ पे भी चेक करा था, इसी लॉजिक से यहाँ पे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हमारा मीडियन क्या है, 80, 1 2 3 4 5। इसमें हमारा 80 मिडिल में आएगा। 80 से नीचे 40 60 ऑलरेडी तो हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, और 80 से ऊपर जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल था 100, वो भी आ चुका है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 80 से लेके 100 तक कुछ आने वाली है, 80 से लेके 100 तक आने वाली है। बट अगर तुम 80 भी रखते हो, जो कि यहाँ की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है, तो 80 प्लस 60 ये 140 चला जाएगा, विच इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो इसलिए हम 60 रख नहीं सकते। एंड यही आइडिया अगर आप आगे कंटिन्यू करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास वैल्यूज नहीं आने वाली हैं इस वाले केस से। जैसे कि मान लो एक और केस हम चेक कर लेते हैं, जस्ट फॉर लिटिल मोर क्लैरिटी। मान लो आपने 60 एलिमिनेट करा, सपोज आपने बोला कि यहाँ पे 70 है। अब 70 आ रखा, तो यहाँ पे भी 70 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 120। यहाँ तक की तो कहानी क्लियर है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि फिर वही चीज होगा कि 80 से नीचे 40 70 दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 100। तो ये वाली वैल्यू फिर से वही 80 90 100 तीन में से पॉसिबल है। अब ये तो नंबर और बड़ा हो गया ना, 80 अगर लीस्ट पॉसिबल भी इसका रखते हो तब भी 150 चला जाएगा, विच इज कॉन्ट्रोडिक्टरी। तो इसका मतलब हमारा 70 भी यहाँ पे नहीं आ सकता। अब कर ही रहे हैं, चलो लास्ट वाला केस भी एक्चुअली चेक कर लेते हैं। 70 एलिमिनेटेड, क्या हमारा यहाँ 80 आ सकता है, दैट इज द लास्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्या यहाँ पे हम 80 रख सकते
है। अगर मैंने यहाँ 80 रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80, 80 प्लस 50 कितना आ जाएगा, 130। यहाँ तक ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन आपका चला गया। अब यहाँ जरा चेक करो, 80 था, एक और तुम्हारे पास 80 आ चुका है, एक तुम्हारे पास क्या है, 40 है, और एक तुम्हारे पास वैल्यू क्या है, 100 है। अगर तुम्हें मीडियन को 80 बनाना है, अगर तुम्हें मीडियन को 80 बनाना है, तो आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 40 से 80 से हम नीचे ले सकते हैं वैसे, 80 से हम नीचे डेफिनेटली ले सकते हैं, बिकॉज फिर मिडिल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 80 आ जाएगी। अ, अब जैसे हम यहाँ पे क्या वैल्यूज ले सकते हैं, जरा एक बार चेक करें। 80 50 मान लो, अम, सारी वैल्यू सेटिस्फाइड है, 80 50, 80 से हम ऊपर ले सकते हैं क्या, एक बार ये जरा चेक करें। 80 से ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में भी आपका मीडियन का आ जाएगा, 80 ही आ जाएगा, राइट। 80 से अगर हमने ऊपर रखा, बट ऑब्वियसली यहाँ पे 80 से ऊपर हम नंबर नहीं डाल सकते, बिकॉज फिर लाइक 80 प्लस 80 से 160 आएगा, वो तो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाएगा। 80 से नीचे वाली वैल्यू जरा हम ट्राई करना स्टार्ट करें। 80 भी नहीं रख सकते, 70 भी नहीं रख सकते, बिकॉज 70 प्लस 80 150 हो जाएगा। 60 भी नहीं रख सकते, बिकॉज 60 प्लस 80, 60 प्लस 80 हमारा 140 हो जाएगा। 60 प्लस 80 इज 140, वो भी अलाउड नहीं है। अगर हम यहाँ पे 50 रखें तो 50 प्लस 80 इज 130, राइट, 130 आया। अब यहाँ पे अपने को चेक ये करना पड़ेगा कि क्या मेरा मीडियन 120 रहेगा। अगर हम यहाँ पे मान लो 130 रखते हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ पे 50 आया, 50 प्लस 80 यहाँ पे 130 आएगा, तो 130 130 130 तीन बार आ जाएगा आपका टोटल में, और 120 120 आएगा। अच्छा, तो फिर 110 आना चाहिए ना, प्रॉब्लम ये है, 80 80 था, 130 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 110 आना चाहिए, तो यहाँ पे 30 आना चाहिए। ओके, सो दिस इज कॉन्ट्राडक्टरी फ्रॉम दैट पार्ट, बिकॉज अगर 80 यहाँ रखा तो ये हमें सोचने की जरूरत भी नहीं थी। 80 है, 80 है, 80 प्लस 50 130 बना, ये लीज कहीं ना कहीं तो आना चाहिए था ना, तो वो यहाँ पे आना चाहिए 110, बट 110 और 80 का जो डिफरेंस आएगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 यहाँ पे अलाउड था, 30 यहाँ अलाउड तो था। 80 से नीचे हमारा नहीं, यहाँ पे 30 अलाउड नहीं है ना, ऑनलाइन वाले में हमारा लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है एक्चुअली में, 40। यस, सो वी कैन डेफिनेटली से कि ये वाला केस पूरा का पूरा क्या है, नॉट पॉसिबल, ये केस बन ही नहीं सकता। हेंस ये जो सिंपल वाला केस था एक्चुअली में, वही हमारा ओनली पॉसिबल सिनेरियो देगा, राइट। सो लेट्स गो टू द प्रॉब्लम्स, हमें पूरा पूरा यूनिक मिल रहा है, उसी से अपने को सारे क्वेश्चंस आंसर करने हैं। What was the total number of registrations in April? April में total number of registrations कितना आ गया, 120। What was the number of online registrations in January? Online registrations in January, that was actually equal to 40. Third, which of the following statements can be true? Which of the following statements can be true? The number of offline registration was smallest in May. Offline was smallest in May. ये सही है क्या? Yes. 80 50 60 40 30 ये हमारा सही है। Then second, the total number of registration was the smallest in February. Right, total वाला हमारा February में क्या least है? No, this is definitely wrong. So इसमें से पहला वाला true हो सकता है, that is only one. What best can be concluded about the number of offline registrations in February? Offline registrations in February की unique value है, that is 50. तो एक ही possible value आएगी तुम्हारी क्या, 50. Offline in February 50, right. Then which pair of months definitely had the same total number of registrations? Pair में आपका सम आना चाहिए same. January and April, right, first option. January and April 120 and 120 is 240. पेयर वाइज देखना, सॉरी, पेयर वाइज 120 एंड 120, जनवरी एंड अप्रैल आर डेफिनेटली इक्वल, ये हो गया सही। फेब्रवरी ऐड नहीं करना है, इंडिविजुअली आपका मंथ्स का इक्वल होना चाहिए। फेब्रवरी एंड मे, फेब्रवरी एंड में 130 एंड 130 दोनों आपका सेम है, तो दिस इज ऑल्सो फाइन। सो इसमें क्या आंसर हो जाएगा तुम्हारा, डी ऑप्शन, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट पुट दैट इन द कमेंट्स। थैंक यू।